ચાલો બધાને જાજા કરીને જય સ્વામિનારાયણ। આજનો પ્રસાદ છે અમારે શાવન કરમસિંહભાઈ લીંબાસિયા, શાવન કરમસિંહભાઈ લીંબાસિયા રાજકોટથી। આજે એમના તરફથી દીકરીઓનો પ્રસાદ છે। પ્રસાદમાં દાલ બાટી છે। કે દિવસની જમવી હતી ને દાલ બાટી? દાલ બાટી કેટલા દિવસથી જમવી હતી ને બધાને? કોના તરફથી છે આજનો પ્રસાદ? કરમસિંહભાઈ લીંબાસિયા, લીંબાસિયા બોલો। રાજકોટથી। ક્યાંથી? આજનો પ્રસાદ એમના તરફથી છે। થેન્ક યુ કહી દો। શું બોલવાનું? ચાલુ કરો બોલવાનું। ચાલો યાદ રહ્યું આજના દાતાશ્રી કોણ છે? ભાઈ કરમસિંહભાઈ। ક્યાંથી? આજે એના તરફથી પ્રસાદ શું છે? થેન્ક યુ કહી દો। ચાલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જમવા મળો। કેટલા દિવસથી ખાવી દાલ બાટી? 1 વર્ષથી। આજે પૂરું થયું ને તમારું સપનું, તો દાતાશ્રીને ખૂબ ખૂબ આભાર કહી દો। આજનો પ્રસાદ છે દાલ બાટી। તાર કઈ જોઈ છે? તમે બેસી જાઓ, બેસવું હોય બેસી જાઓ ને ભલે ને, બેસી જ જાઓ બધાય। આ ભૂંગળા ક્યાં? આ ભૂંગળા નહોતા તળવાના। છોકરીઓ ગોળ જોઈ તો લઈ જાજો। આટલા જ ચેક છે બીજા? ઓમાં નાખ, ઓમાં છે એ નાખ દો। આમાં ભૂંગળા છે ને હજી બીજા? એમાં છે હજી, ઓમાં છે જ। પછી કાલે 11 છે, હવાઈ જાય વર ચોમાસાના। ભૂંગળા હતા એ ક્યાં? તો ઈ નથી કેતી। ઈ ડ્રમમાં શું છે? એમાં ભૂંગળા નાખ્યા હતા, તમે જ નાખ્યા। જોવો પેલા પૂરા થઈ ગયા। તમે યાદ નથી, તમને મારી જેમ ભૂલ થઈ જાય। મને ખબર હતી, મેં જ તમને કીધું તું નાખો, તમને યાદ નથી। ના ના, મને યાદ હોય ને, મને ના, મને હવે નથી તળવા। કાલ 11 છે નહીં, નથી તળવા। અને સીધી ઓલા આને કઈ મહરમાં મસળમાં એને મસળમાં એમ તો સીધી તળવાનું નથી। ચાલો બધાને જાજા કરીને જય સ્વામિનારાયણ। આજનો પ્રસાદ છે દાલ બાટી। આમ જો એ વિષ્ણુભાઈ જોવો, મોજ છે ને? विष्णुभाई जो बहुत झगड़े मेरे साथ बहुत झगड़ते हैं ना विष्णुभाई, सच्ची बोलना। આજે બપોરનો જેનો થાળ હતો એમના તરફથી આટલા ઘઉં આવેલા છે।
મને કે બેન નામ નથી આપવું આપણે. આ ઘઉં હવે ઘઉં ભરવાય કંઈક ગોતવું પડશે ને. તમે કાલ ઓલા લઈ આવજો ટીપણા, વहाँથી ટીપણા લઈને અહીં સાફ કરી અને કાલ भरी दई. मेरे साथ बहुत लड़ते हैं ना, सच्ची बोलना. कौन लड़ते हैं? हाँ, जो अपने होते हैं ना वही लड़ते हैं. जिनके साथ ज्यादा लगा होता है वही हाँ. लड़ते हैं. दाल बाटी कब से बनानी थी, पर हम सबको वो बाटी अच्छे से आती नहीं थी, पर ये राजस्थानी आ गया तो उसको आती है. उसकी तो वहाँ की फेवरेट है तो बनाएगी. થાય છે આ થાય આ થાય ચાર્જ ગોતવું પડશે એ છે ને. હવે ઓલું થઈ જ ગયું. रिपल इधर आजा थोड़ा. अभी हमारी क्लास लगने वाली है. नहीं, मैं क्लास लेने वाली नहीं हूँ. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लगेगा ही ना, यहाँ इतना अपनापन है. 10 दिन हो गए ना तू आई है ना. अभी पूरा इधर ही रहना है तुझे. आश्रम में ऑफिस में सबको ये लड़की को लैपटॉप सिखाना है, कंप्यूटर सिखा दूंगी. हम ढूंढ रहे हैं किसी लड़की को, किसी को आता हो उसको ढूंढ ही रहे हैं. तो तू ही रह जाना. इंग्लिश भी सीख जाएगी और कंप्यूटर भी सीख जाएगी. તમે બેસી જાવ ને, તમે ચાલુ કરો જો આ ટેબલે બેસી જ જાઓ. જાઓ બેન, જાઓ જમવાનું લઈ લો. હાલો જાઓ જાઓ, હાલો બધા બેસો. હાલો વિષ્ણુભાઈ ચાલુ કરો જમવાનું. હવે બધાને થાળી લઈને બેસી જ જા, રાહ નહીં જોવાની કોઈને. એ તો કમલેશભાઈ છે. રસોડામાં હું કોઈને જવાનું થતું જ નથી. સિસ્ટમ બંધ, રસોડામાં નહીં જવાનું. હવે આશાબેન સ્ટીક થઈ ગયા. બસ આ રેખાબેન હાલો જમવા બેસો બધાય. ચહેરામાંથી આ દીકરી હું એક જ છેલ્લે, હું ની બે રસોયા ત્રણેય છેલ્લે. જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. बोलिए रूपल, क्या बोलूं बताइए दीदी. तुझे अच्छा लगे इसका इधर आश्रम का तुझे अनुभव होगा वो बोल. हाँ, आश्रम में काफ़ी शांति है. ठीक है, बच्चियाँ काफ़ी समझदार हैं और जो है दीदी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं. हर छोटी बड़ी चीज़ें मतलब डेली बेसिस पे उनसे कन्वर्सेशन करती हैं. ऐसा बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे अभी खाना वाना सब लोग खा लेंगे, फिर उनको बिठा के अच्छे से उनसे 1-1.5 घंटा रोज 1 to 1 होती हैं. इससे क्या होता है कि जो उनको आपस में भी मनमुटाव या फिर कुछ आपस में भी गलतियाँ रहती हैं, तो जब प्रेम से ऐसे बात करने से वो अपनी सब बातें कह पाती हैं कि किससे क्या समस्याएं, तो इससे उनकी समस्याएं पता चलती हैं. बाकी उनकी जो ज़रूरतें होती हैं कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, जो भी कॉपी पेन ड्रेस और स्कूल से जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब बातें भी कर पाती हैं. और भी चीज़ें जैसे उनके करियर के बारे में डिस्कशन कि क्या करना है क्या नहीं करना है आगे, उन चीज़ों पे भी दीदी डिस्कस करती हैं. और फिर उसके बाद उनका रूटीन काफ़ी हमें अच्छा लगता है. सुबह अराउंड 5 o'clock तक वो जग जाती हैं. उसके बाद प्रॉपर अपना डेली रूटीन करने के बाद स्कूल जाना, नाश्ता करके फिर 12 बजे तक आती हैं. फिर बढ़िया अपना ड्रेस वगैरह उतार के फिर अपने रेगुलर यूनिफॉर्म को पहन के फिर खाना वगैरह खाना. અહીંયા કમલેશભાઈ લ્યો ને ઉપર બેસો. आधा અહીંયા घंटा ઓય સોનલ બધા ટેબલ ઉપર. अराउंड आधा 1 घंटा वो रेस्ट करती हैं. फिर 2 बजे तक मैं देखती हूँ कि फिर सब लोग फिर से अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह करने बैठ जाती हैं. फिर आपस में भी जो बड़ी बच्चियाँ रहती हैं वो उनका सहयोग भी करती हैं. जो चीज़ें नहीं आती हैं तो आपस में ऐसे डिस्कस करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करती हैं. फिर उसके बाद
शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत बाहर ऐसे आपस में नाश्ता वगैरह करके फिर थोड़ा बहुत ऐसे खेलती वेलती हैं, फिर शाम की आरती, फिर खाना पीना, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ती हैं, फिर दीदी के साथ बैठती हैं, फिर शाम को बैठने के बाद फिर कुछ न कुछ उनको चॉकलेट आइसक्रीम कुछ न कुछ उनको मिलता ही ये एक अच्छा तरीका भी है कि हाँ सब लोग बैठेंगे भी क्योंकि लास्ट में कुछ मिलेगा, ये भी है, नहीं तो क्या पता कि नींद आने लगे, ऐसे तरह तरह के बच्चों के बहाने होते हैं। अब ये रहेगा कि हाँ थोड़ी देर बात करेंगे, बैठेंगे, इसके बाद चॉकलेट मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगा ये सब दाताश्री द्वारा चलता है ना, हाँ। डोनेट द्वारा चलता तो है। सब लोग बहुत, मैं देखती हूँ कि सब लोग डोनेशन देने भी मतलब मदद कोई करते भी- हैं, थाड़ करते हैं भगवान का। और जो भी चीज़ें हैं बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, कॉपी पेन कपड़े वगैरह भी मैंने भगवान भेज देता है, वो बोल तू, है ना, किसी को बोलना नहीं पड़ता, किसी का हृदय में बस के प्रभु भेज देते हैं ऐसे ना। देखते हैं, रास्ते में आते जाते लोग देख के चले जाते हैं जिनका पता भी नहीं होता है कि कौन है। इस तरीके से काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी शांति है, और किसी भी प्रकार की यहाँ पे मैंने देखा है कि मतलब खुले मन से चीज़ें होती हैं। बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जिनके पीछे स्वार्थ होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नारायण के भरोसे ऐसा है। काफ़ी सुकून मिलता है, सबसे बड़ा मतलब यही है कि यहाँ पे काफ़ी शांति है, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, बहुत इमोशनल हैं, धार्मिक बनेगी हाँ। और देश के लिए भी बनेगी। हाँ, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी हैं, जैसे बात करने में भी, और ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे आश्रम में है तो उनका जो है सर्वांगीण विकास के ऊपर उनके ध्यान दिया जाता है, उनको डांस वगैरह, म्यूजिक और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, खाना वगैरह कैसे किसी गेस्ट को सर्व करते हैं, चीज़ें उनको सब जैसे एक नॉर्मल घर में चीज़ें अपने बच्चों को आदमी सिखाता है कि कैसे हम गेस्ट के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे आपस में रहते हैं, कैसे पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो उनके हर एक पॉइंट पे काम करके उनके व्यक्तित्व का कैसे विकास होगा, इन चीज़ों पे काफ़ी हर एंगल से दीदी फोकस करती हैं कि कैसे रहना चाहिए बच्चियों को, और स्कूल जाना, समय से स्कूल भी जाते टाइम जो है अच्छे से पूरा सिक्योरिटी के साथ रेखा बहन ले जाती हैं प्रॉपर। उनको ऐसा भी नहीं है कि ऐसे छोड़ देते हैं, गेट में आने जाने में भी तुरंत गेट लॉक होता है, कोई बिना परमिशन के ज़्यादा नहीं है बाहर, तो काफ़ी सिक्योरिटी भी है और सुकून भी है। फिर आपस में बच्चियाँ डांस वांस भी, गाना वाना भी, अपना थोड़ा उनका मनोरंजन हो इस तरीके से अपना म्यूजिक वगैरह लगा के साउंड बॉक्स वगैरह से सुनती भी हैं, डांस भी करती हैं, गरबा वगैरह मेरे को भी सिखाती हैं। एक आदर्श नागरिक बनेगी, है ना, हाँ वही मेन मेरा फोकस है हाँ कि वो आदर्श नागरिक बने। उनसे गलती हो गई है तो वो कहने आती है। हाँ, आज उनसे गलती हुई थी तो वो एक तो कह गई ना हाँ। कि मेरे से ये भगवान का खाना मैं खा गई हूँ, हाँ, तो कोई बात नहीं, खाया, पर वो भूल होती है, वो कह जाती है, वही पसंद है। वही चीज़ भूल किसी से होती है पर वो स्वीकार लेती है ना, वो सामने से कह जाती है, वही चीज़ें वही होनी बड़ी चाहिए। बात है। गलती तो सब करते हैं, हाँ। पर गलती को स्वीकारने की हिम्मत सब में नहीं होती है, और उसको वही सुधारना सिखाना है, वही सिखाना है हाँ। कि हमारे से गलती हुई है तो हमें सबके सामने स्वीकार लेना चाहिए। जी भाई, बच्चियां हैं वो अलग अलग परिवेश से आई हैं, पर यहाँ पे सबको एक समान रूप से रखा जाता हाँ। है, चाहे वो मतलब इसमें ये है कि बहुत बच्चियों की पारिवारिक स्थिति कुछ की ठीक भी रही है, कुछ की एकदम नहीं सही है, किसी के मम्मी पापा पेरेंट्स का दिक्कत, तो हर तरीके से हर बैकग्राउंड से बच्चियाँ हैं, तो सबको एक समान रूप से लेके चलना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कौन किस बैकग्राउंड से आया है, किसकी कैसी अपब्रिंगिंग हुई है, ये तो नहीं जानकारी है ना। मुझे ऐसे बोलती रहती है, तुम घूमने नहीं जाते, घूमने हाँ, चलो। हमें इनसे शिकायत है, दीदी हमें घूमने नहीं लेके जाती हैं। लेकिन दीदी को टाइम मिलता है तो ले जाए, कोई फ्री हो तो आ जाना। रूपल को द्वारका जाना है और सोमनाथ और जूनागढ़ स्वामीनारायण मंदिर तो आ जाएंगे सब ना, जाना है, फैमिली के साथ कोई फ्री हो तो ले जाइए। मैं गुजरात आई, लेकिन मैं गुजरात दर्शन नहीं कर पाई। नहीं, जो तभी जाना था तब मैं तो फ्री, तू देखती रहती है ना, मैं फ्री होती हूँ। नहीं, अभी जाना है तो मैं जाएंगे तो बारिश आने लगी। ये मेरे को दीदी जलेबी की तरह गोल गोल घुमा, तो चलेंगे चलेंगे, पर नहीं, मैं तुझे पक्का चलेंगे। दर्शन करने में भेजूंगी, ये तो मैं बोल दिया ना कि भगवान का दर्शन के लिए मैं कभी मना नहीं, वो भेजूंगी, पर मैं नहीं आ सकती।
और मुझे बोलती आप कॉफी पीने चलो वहाँ, मैं कभी नहीं जाती। बोल विष्णु भाई को पूछ। हमकी शाम को इतना अच्छा वेदर था, काफी अच्छी बारिश भी हो रही थी, हमें दीदी छत में कॉफी मैंने मेरा शौक है ना वो बच्चियों के लिए समर्पित कर दिया, એટલે मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है ना। नहीं ये तो है कि दीदी कहीं बाहर भी नहीं जाती हैं, जाती भी हैं तो काम से ही जाती हैं, ऐसे मतलब खाने पीने या फिर घूमने टहलने। जितने टाइम से मैं बोल रही हूँ, पिछली बार भी आई थी तब भी कविता बहन लोग सब लोग थे, लेकिन सब लोग हम लोग जाते थे, कविता दीदी के साथ जाते थे, कविता दीदी के साथ तो खूब मस्ती हम लोग करते थे, पर दीदी नहीं जाती थी। मेरे पे कितनी जिम्मेदारी है, मैं कैसे ऐसे छोड़ के चली जाऊँ, नहीं जा सकती ना। हाँ वो तो कभी मुझे भी मन करता है कहाँ, पर नहीं जा सकती ना। कभी जाएंगे सब एक जैसे, अभी 1 साल बना, ये दूसरी साल है, तो 1-2 साल लगेंगे मुझे मैनेज करने में, बाद में प्रभु की इच्छा। धीरे धीरे फिर बच्चियाँ भी जब ऐसे थोड़ी सी समझदार हो जाएंगी ना, बच्चियाँ काफ़ी कुछ बच्चियाँ काफ़ी छोटी भी हैं, क्लास 2nd 3rd से हैं बच्चे। हाँ, इसलिए संभालना पड़ता है, उनको संभालना, उनकी चीज़ों को देखना, आपस में कैसे वो कोऑर्डिनेट होके एक साथ मिल के रहें, बड़ी बच्चियों को समझाना, उनको समझाते रहो। तो ये जितना ऊपर से देखने में आसान लगता है वो इतना आसान नहीं है। एकदम एक गार्जियन की तरह यहाँ पे 24/7 एकदम अवेलेबल ही रहना होता है। चाहे ये बाहर भी रहती हूँ तो मैं देखती हूँ हमेशा फ़ोन चलता रहता है, मतलब इधर से जो यहाँ पे हैं लोग सेवा में और जो खाना बनाने वाले कर्मचारी हैं, सब लोग आपस में बहुत एकदम कम्युनिकेशन इन लोग का हमेशा बना रहता है दीदी के साथ। कभी किसी चीज़ की किसी बच्चियों को कमी नहीं हो। सबसे बड़ा है कि हमेशा गेस्ट आते जाते रहते हैं, तो फिर उसमें भी ध्यान देना, गेस्ट भी आए तो उनसे अच्छे से मिला जाए। आप सब भी आना है ना, हाँ देखने के लिए आना। सभी लोग आना आश्रम देखने। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ सबको कि ऐसे वीडियो देखने से और इधर आने से देखने से अच्छा लगेगा, यहाँ पे क्योंकि प्रॉपर आपको पता भी चलेगा कि एक्टिविटी क्या चलती है। हमें तो कुछ छुपाना नहीं है। हाँ, सामने ये सब कुछ हाँ, छुपाना तो मुझे छुपाना तो आता ही नहीं है। मेरा आश्रम हो या मेरी खुली किताब की जैसी है। बच्चियाँ हैं, बच्चियों से देखती हूँ कुछ गार्जियन चाहे कुछ गेस्ट आते हैं, अपना जाके आश्रम अच्छे से जाके विजिट करके आते हैं। पर हाँ ये है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी और भी लोग इस तरीके से कि अपना जाएं, बच्चियों का रूम वगैरह देखते हैं कैसे है क्या है, बच्चियों से बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सब कुछ एकदम खुला है, कुछ ऐसी छुपाने वाली चीज़ें नहीं है। ये नहीं है कि आपको बच्चियों के रूम में नहीं जाना है, चाहे इसमें नहीं रहना है, ऐसे दायरा कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी गेस्ट आए ठीक है आप बच्चियों से मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई रियलिटी है, ये चीज़ें जो है स्पष्ट है। बच्चियाँ भी काफ़ी स्पष्ट ही रहना चाहिए ना। हाँ तब क्या यही होना। हमारे कुछ चाहिए नहीं है तो हम क्यों छुपाइए। हाँ कुछ भी नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ तो है नहीं। हाँ। विकास ही है, इसीलिए आदमी इतना मेहनत करता है। तो બહુ મજામાં ભાઈ, પણ આ નથી જોવો ને। હા હા, બેસો બેસો, ખુરચી લ્યો। કોણે જમી લીધું? આ પાણી, પાણી ભર દે। इधर कुछ छुपने वाली बात ही नहीं है ना। नहीं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ छुपाने वाली चीज़ें हैं। हर चीज़ें ये नहीं है कि हमें तो शौक है ऐसा, इसलिए प्रेम से कर रहे हैं। बहुत कम लोग करते भी हैं, इतना सबके अंदर गट्स नहीं है, और कुछ लोग करते भी हैं तो उनका मोटो कुछ और रहता है। बस ये सामने से संस्था वगैरह चलाना या फिर आश्रम, बहुत कम ही लोग होते हैं जो उनका सेवा के ऑब्जेक्टिव से करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये है कि रियलिटी में गरीब बच्चियों को अच्छे से यहाँ पे एडमिशन वगैरह प्रॉपर होता है, उनको स्कूल भेजना और बाकी जो भी उनकी समस्याएं हैं, एक घर की तरह जैसे एक घर में गार्जियन ट्रीट करता है अपने बच्चों को, वो चीज़ें मैंने यहाँ देखी है। वैसे जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तभी मैं देख के स्तब्ध हो गई थी चीज़ों को, क्योंकि बच्चियों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस वगैरह किया था, इतना तो हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था, और कितना हमारे लिए डांस टीचर वगैरह सब रहते थे, डांट के ऐसे करो वैसे करो, और बच्चियों का माइंड बहुत शार्प है। ये होता है ना कि थोड़ा ये लोग स्ट्रगल पे से आए हैं तो काफ़ी उन लोग का दिमाग भी काफ़ी तेज़ है, सीख जाती हैं बहुत जल्दी चीज़ों को, तो अच्छे से कुछ
ये सब जन जागरूकता के विषय में भी उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया था सोसाइटी के रिगार्डिंग चीज़ों पे, और बाकी सोशल मीडिया अवेयरनेस पे भी उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया था। एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें थी। मैंने कुछ नहीं सिखाया हो। हाँ, मुझे एक मैंने यूट्यूब में देखा, मैं ऐसे आपको करना है। हाँ, वो मैं लिंक एक बार दे देती हूँ, वो सब सीखती है। मैंने पूछा था उनसे, हाँ, तो हम कैसे कैसे, तो फिर हमके कोई सिखाने के लिए आता है तो कहते हैं आपस में। बाकी संध्या ने मैं शाम सहयोग हाँ किया था। संध्या थी तो मैं शाम को देखती रहती हूँ कि पूरा दिन मेहनत करी, शाम को मेरे सामने आप दिखाइए कैसे करते हो। हाँ, वो चीज़ें बच्चियाँ बता रही थी। हाँ, काफ़ी एक डिसिप्लिन तो है ही चीज़ों में, और लाइफ धर्म भी सीखेगी। और डिसिप्लिन होनी भी चाहिए, और डिसिप्लिन के लिए थोड़ा सा डर भी जरूरी है ना। उतना नहीं आदमी बना के रखेगा तो फिर चीज़ें सही नहीं रहती हैं ना। एक पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों का जो है विकास करें और सही डायरेक्शन में करें। सबसे बड़ा है कि किसी भी लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और बच्चियाँ 11th क्लास में 9th में हैं, और इतना ये लोग आज के पीरियड की ऐसे बच्चे हैं कि जिनको काफ़ी सबसे बड़ी समस्या ये फ़ोन है, फ़ोन से दूर है। तो इनका माइंड क्या है, एकदम खुला हुआ है। जो भी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें इनके दिमाग में जाती हैं। 12वीं कक्षा तक फोन की जरूरत ही नहीं है। वही ना, नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे जो हाँ, जैसे वो में घर रहते पे हैं, रहते हो नहीं फोन मानते, में 1000 तरीके पर के- माँ बाप भी देते हैं, देना ही नहीं चाहिए। जो करना वो करे, पर नहीं देना चाहिए। ये चीज़ तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं बच्चे मानते हैं, और उनके दिमाग में वही सब कचरा, फ्री फायर, तो पबजी, तरह तरह के तमाम हाँ। तरीके के AI गेम्स वगैरह, ये सब चीज़ें भरे। लेकिन इन लोग का दिमाग एकदम फ्रेश माइंड है। इधर धर्म ज्ञान भक्ति सब हाँ। सीखेगी। सो एकदम प्रॉपर सुबह पूजा पाठ करना, सबसे पहले भगवान को जगाना। मैं देखती हूँ बच्चे भगवान को जगाने जाती हैं, फिर नहा धो के पूजा करना, टीका करना, स्कूल जाना, फिर ना धो के ही भगवान को जगाती है, हाँ, पहले उठ के तो नहाना ही है। मैं देखती हूँ। यहाँ पे तो ऐसा, यहाँ पे तो मैं आके ये चीज़ें देखती हूँ ना, मैं अपनी रियलिटी बता रही हूँ। मैं अपने यहाँ पे ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे कोई रूल था कि सुबह उठ के नहाना ही। हमारे यहाँ पे है कि सुबह उठ के बढ़िया नाश्ता वास्ता कर लिए, फिर स्कूल जाते टाइम चाहे कहीं जाना है तब नहा रहे। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले उठती हूँ, नहाती हूँ, भगवान के पास जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, तभी फिर आगे कुछ खाती हूँ। चाय मिलती है ना, वो भी रूल्स लगा दिया मैंने। और ये रूल्स जो है दीदी, मतलब मेरे को जब प्रयागराज गई थी तब मेरे को बताई थी, तब से मैं ऐसा करती हूँ। और मैंने दीदी को ये चीज़ शेयर भी किया था कि ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना। एक बार आई तो मैं कीधु नहाने के बिना मैं किसी को छूती नहीं हुई ऐसे, हाँ, तब से वो नहाने लगी। और तब से मैं ऐसे सुबह नहाने लगी। नहीं तो मैं ये नहीं था कि नहीं, कंठी तो मैं इंगेजमेंट से एक दिन पहले जब था, इंगेजमेंट के दिन जो हम नेकलेस वगैरह सब पहनते हैं, उसमें मैंने निकाल के देखी, वहीं होटल से ही मेरी गायब हो गई। नहीं, तुझे इधर से दे देंगे, मंगवाई है मैं। तब तक मैंने पूरी पहनी। ये कंठी पहनी है, भगवान भी रखे है ना। हाँ, भगवान भी हमने रखा हुआ है। बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं बच्चियों से भी। सीखना लेकिन पड़ता है कि है। मैं रोज सुबह प्रयास करती हूँ अपने मन में, बस कि मैं 4 बजे उठूंगी, लेकिन आज तक उठ नहीं पाती। कल की હરિદ્વાર હું પ્રયાગ ગઈ ને ત્યારે જ મેં કીધું કે નાયા વગર અડાય જ ને આપણે રાતે સુઈ ગયા હોય ને આપણું શરીર છે ને મળદું જ એક જાતનું થઈ ગયું હોય, એ તો ભગવાન ઉઠાડે એટલે આપણે ઉઠી છીએ. એટલે ઘણા એવા પ્રશ્ન કરતા હોય નાયાથી શુદ્ધ ન થાય, મન શુદ્ધ રાખવું, હૃદય, પણ પહેલા તો નાહવું જ પડે. દેહ શુદ્ધિ તો પહેલા કરવી પડે. દેહ શુદ્ધિ કરીને ત્યારે જ મનની શુદ્ધિ થાય ને ત્યારે જ આત્માની શુદ્ધિ થાય. ત્યાં સુધી કઈ દિવસ ક્યારેય કાંઈ ન થાય. આ વિષય ઉપર આપણે પછી વાત કરશું. પણ રૂપલ ઘણા દિવસથી જ્યારે મારે બહુ જ આ દીકરીઓ આવી અને સેવાવાળા ઘણા બધા આમ તેમ જવાનું હતું, ચેન્જ કરવાના હતા સેવાવાળાને, અને બીજા આવવા જવાના લાવવાના હતા બધું, તો બહુ ટેન્શન હતું. તો હરિદ્વાર પ્રયાગથી એને ટિકિટ ન મળી તો એ જનરલ ટ્રેનમાં આવી ગઈ, એટલે કેટલી લાગણી હશે એને. અને એ આવે એટલે એમ કે હું આ જોઉં છું એટલે મને ગમે છે એમ. અને આપણે કાંઈ છૂપું છે નહીં, બસ ખુલ્લી કિતાબ જ છે ને આ તમારા બધાના આશીર્વાદથી સેવા થાય છે. અને તમને એમ થાય કે મારો કોન્ટેક નંબર છે 981719 923. તમને એમ થાય કે મારે બર્થડે છે, એનિવર્સરી છે, શુભ પ્રસંગ છે ને દીકરીને જમાડવા છે, તો ચોક્કસ કોન્ટેક કરજો. મારો કોન્ટેક નંબર છે 981719 923 981719 ચાલો બધાને જય કરીને જય સ્વામિનારાયણ. ચાલો હવે આપણે જમી લઈએ, બધા જમી લઈએ.
10 बजे जो आप सो जाओ। ચાલો બધાને જાજા કરીને જય સ્વામિનારાયણ.